دنیا یوٹیوب چینل۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک کہ بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، بدترین کام دین میں اضافہ ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ، دین میں اضافہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل من عمل الا ما كان له خالصا او مبتغيا في به الوجه، رواه النسائی او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الآخر كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ احکم الحاکمین، اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم گنتی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ میری نعمتوں کی تم گنتی نہیں کر سکو گے، میری نعمتوں کی تم گنتی نہیں کر سکو۔ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے، جو اللہ ہر انسان کو عطا نہیں فرماتا۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس بندے کو اللہ نے جنت میں داخل کرنا ہوتا ہے، یہ نعمت اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ وہ نعمت ہے دین اسلام کی۔ آج کافروں کے پاس دین نہیں ہے۔ آج بڑے لوگ مسلمان ہیں نام کے، لیکن ان کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، ان کے پاس دین نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے دین دیا، دین کی سمجھ دی ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ انسان بہترین انسان ہے، اللہ کا پسندیدہ شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بخیر یفقہ فی الدین، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا، اس کو اپنے دین کی فقاہت عطا فرما دیتا ہے۔ فقاہت کا مطلب ہے سمجھ، علم عطا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے من یرد اللہ بخیر استعملہ لدینہ، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے نا، اس بندے کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے استعمال کا مطلب ہے اپنے دین کا نوکر رکھ لیتا ہے، اپنے دین کی نوکری کا کام لیتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ اپنے بندے کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتح لہ عملا صالحا
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के लिए नेक अमाल करने के लिए दरवाजे खोल देता है, अपने उस बंदे से नेक अमाल करवाता है। वो नमाज पढ़ना हो, रोज़ा रखना हो, ज़कात हो, कुर्बानी हो, उम्रा और हज हो, दावत का काम हो, जिहाद का काम हो, खिदमत का काम हो, कोई भी दीन का काम अच्छा काम है, अल्लाह उस बंदे को तौफीक अता फरमा देता है, उसके लिए दरवाजे खोल देता है। बड़े लोगों के लिए दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिसको दीन की फ़क़ाहत, अल्लाह जिसको दीन का इल्म, दीन की समझ अता फरमाता है, जिस बंदे को दीन से मोहब्बत है ना, समझ उसको अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस कुदसिया है कि बात तो अल्लाह के नबी के अल्फाज रब की तरफ से, कुरान हर चीज़, अल्फाज भी, बात भी, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से। हदीस कुदसिया वो होती है जो अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों और मफ़हूम अल्लाह की तरफ से हो, और जो हदीस होती है वो मफ़हूम भी और अल्फाज भी अल्लाह के नबी के हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जिब्रील इस्लाम को बुलाता है और फरमाता है, जिब्रील फला बंदा, फला उसका नाम लेकर, फला इब्ने फला, फला का बेटा, फला शख्स वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। क्यों? वो जब अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, दीन पर अमल करता है, ये अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है कि मैं फला बंदे से वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, और जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील इस्लाम भी उससे मोहब्बत करते हैं, और फिर अहले समा के अंदर ऐलान कर दिया जाता है कि फला इब्ने फला से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिब्रील भी मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो, और वो भी मोहब्बत करते हैं, सारी मखलूक़ात मोहब्बत करती। और फिर वो मोहब्बत अल्लाह ताला ज़मीन पर चलने वाले लोगों के दिलों में डाल देता है। जो नेक आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, उसकी हर बंदा इज्जत करता है। ये क्यों करता है इज्जत? क्योंकि अल्लाह से वो मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह ने डाल दी, और वो मोहब्बत इज्जत की सूरत में, एहतराम की सूरत में, जब भी वो किसी से बात करता है, लोग उसकी बात को तरजीह देते हैं, उसके पास अमानत रखाना पसंद करते हैं कि ये अच्छा आदमी, अमानतदार है, कोई फैसला हो उस नेक आदमी से करवाते हैं कि ये डंडी नहीं मारेगा, ये फैसला सही करेगा। ये उसका जो अमल है, दीन पर अमल किया है, उसकी वजह से अल्लाह से वो मोहब्बत किया उसने। दीन से अमल करना ये अल्लाह की मोहब्बत है, और अल्लाह फिर उससे बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से अपने दीन से इर्तिदाद इख्तियार करना चाहता है, दीन से निकलना चाहता है, दीन पर अमल नहीं करना चाहता, अल्लाह फरमाता ना करे। मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, आगे अल्लाह फरमाता फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। फसौफा, बस अन करीब, यातिल्लाहु, अल्लाह लाएगा, अन करीब अल्लाह लाएगा, बेकौमिन, ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को लाएगा, खड़ा करेगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता हो। जो दीन का काम करने वाले हैं, दीन पर अमल करने वाले हैं, ये निशानी है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। उस हदीस का दूसरा रुख, अल्लाह ताला जिब्रील इस्लाम को बुलाकर फरमाता है, अल्लाह ताला, जिब्रील फला इब्ने फला, जो इंसान गुनाह करता है, दीन पर अमल नहीं करता, लड़ाई झगड़े करता है, चोरियां, जिना, डाके, सूदी कारोबार, अल्लाह और उसके नमाज के करीब नहीं जाता, कुरान पढ़ना नहीं आता, उसको नाम का तो मुसलमान है, लेकिन उससे पूछ ले तुम्हारा दीन क्या है, उनको अपने दीन का नहीं पता हमारा दीन क्या है। दुनिया के बारे में उसको बड़ा पता है,
झूठ वो बोलता है, गीबत वो करता है, चुगली वो करता है, खयानत वो करता है। वो इस जमीन पर चलते हुए गुनाहगार आदमी, बेदीन आदमी, ये अल्लाह से नफरत है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील फला इब्ने फला का बेटा जो फला है ना, उसका नाम लिया जाता है, वो मुझसे नफरत करता है। मैं अल्लाह भी उस बंदे से नफरत करता हूं, तू भी उससे नफरत कर। उस गुनाहों की वजह से अल्लाह उससे नफरत करता है। जिब्रील इस्लाम भी उससे नफरत करते हैं और अहले अस्मा के अंदर यह ऐलान कर दिया जाता है कि फला इब्ने फला से अल्लाह भी नफरत करता है, मैं जिब्रील भी नफरत करता हूं, तुम भी नफरत करो। और अहले अस्मा के सब उस बंदे से नफरत करने शुरू कर देते हैं और वो नफरत अल्लाह ताला जमीन पर चलने वाले लोगों के दिलों में डाल देता है। जो बंदा गुनाहगार होता है वो किसी से बात करे तो इतबार नहीं करते, खयानत, उसके पास अमानत रखना वो पसंद नहीं करते। वो कहते यार ये तो इस तरह का आदमी है, इसने तो मस्जिद का मुंह नहीं देखा, कभी नमाज नहीं पढ़ी। उसके गुनाहों की वजह से, ये गुनाह अल्लाह से नफरत की निशानी है। दीन पर अमल करना, नेक अमल करना अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है। और लोग उस बंदे से नफरत करते हैं, बुरे आदमी को, गुनहगार आदमी को, बेदीन आदमी को दिल के अंदर लोगों की नफरत होती है। जो नेक आदमी होता है उसकी मोहब्बत होती है। क्यों? उस बंदे से, नेक आदमी से अल्लाह मोहब्बत करता है, बुरे आदमी से अल्लाह नफरत करता है, इसलिए लोग भी नफरत करते हैं। तो ये जिस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को अपने दीन की समझ दे देता है। दूसरी हदीस में है अपने दीन के लिए इस्तेमाल करता है। अल्लाह अकबर। मैं अपने मौजू को समेटता हूं। मैं सिर्फ 4 बातें अर्ज करना चाहता हूं, 4 बातें, तवज्जो के साथ सुनना। अगर ये 4 बातों के ऊपर हम अमल कर लें, ये मेरी बातें नहीं हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं, हमारा हर अमल कबूल हो जाएगा। अगर इन 4 में से एक भी रह गई, 3 पर अमल हो गया, फिर भी सारी जिंदगी के अमल जाया हो जाएंगे, सारी जिंदगी की मेहनत जाया हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। वो 4 चीजें ये अमल की कबूलियत की शर्तें हैं। नंबर 1, अकीदा तौहीद। हमारा जो अकीदा है वो तौहीद, एक कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, उसका कोई हमसर नहीं। वो अल्लाह किसी से ना पैदा हुआ है, ना अल्लाह से कोई पैदा किया गया है। अल्लाह जैसा कोई नहीं है, अल्लाह का हमसर कोई नहीं है। वो खालिक है, बाकी हर चीज मखलूक है। और इबादत किसकी की जाती है? खालिक, माबूद की, माबूद इलाह की। कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है। मक्का के मुशरिकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जब इस्लाम बढ़ रहा था, हर घर से इस्लाम की आवाज़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान की आवाज़ आ रही थी। तो काफिर, ये मुशरिक परेशान हो गए, जिन्होंने बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। आखिर कहते हैं इसको रोकें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आखिर कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह करते हैं, तूने अपना एक नया दीन घड़ लिया है, हमारे रिश्तेदार था तू, हम में से था, अब तूने अपना नया दीन घड़ लिया, बना लिया है, ठीक है बना लिया है तो कोई बात नहीं। हम इस तरह करते हैं, 1 साल तू हमारे मबूदों की इबादत किया कर, और 1 साल जो तू कहता है ना मबूद है मेरा अल्लाह, हम उसकी इबादत करेंगे। अल्लाह ताला ने इस जगह पर कुरान उतार दिया, फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून। कुल का मतलब है ये अमर का सीगा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हुक्म दे रहा है इनको कह दे, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो,
ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और तुम भी वो उसकी इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूं, जिसकी मैं इबादत करता हूं। अल्लाह ने वाज़ दो टोक कि ये एक साजिश के तहत आए हैं, ये आपकी दावत को रोकने के लिए आए हैं, आपके अकीदे को कमजोर करने के लिए आए हैं। दो टोक वाज़े तौर पर कह दे कि जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा, जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी इबादत नहीं कर सकते। ये हमारा अकीदा है, अकीदा तौहीद है। अब हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज के तशहुद के अंदर हम कभी हम अपने घर के अंदर तर्जमे वाली नमाज जाकर उठाकर देख लेना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वतय्यिबात, इसका माना क्या है? जाकर अपने तर्जमे वाली नमाज पढ़ी होगी घर में, जाकर इसका तर्जमा पढ़ लेना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वतय्यिबात, इसका मतलब है मेरी कौली इबादत, मेरी बदनी इबादत, मेरी माली इबादत सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। कौली इबादत क्या है? जबान से जो हम इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह से मांगनी चाहिए। बदनी इबादत है रुकू करना, सजदा करना, हज उम्रा करना, तवाफ करना, अल्लाह के लिए होना चाहिए। माली इबादत जो हम ज़कात देते हैं, उशर देते हैं, या कोई सदका करते हैं, खैरात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वतय्यिबात, अल्लाह के नबी ने हमें नमाज के अंदर यह बात सिखा दी है, अकीदा बना सिखा दिया है कि तेरी कौली इबादत, तेरी बदनी इबादत, तेरी माली इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब हम ये कुर्बानी करके कल बैठे हैं, जानवर ज़िबा किए हैं, ये जानवर क्यों ज़िबा किए हैं? किसकी सुन्नत है? किसको अल्लाह ने हुक्म दिया था? अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर बताया था कि अपने बेटे को ज़िबा कर। ख्वाब से बेदार हुए, बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने ख्वाब के अंदर देखा है, मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, माज़ा तरा, तेरा क्या इरादा है? बेटे ने कहा या अबती फअल मा तुमर, ए अब्बा जान जो आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है आप उस पर अमल करें। सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब था। और याद रखो इस बात को, जो नबी का ख्वाब होता है अल्लाह की तरफ से वही होती है। नबी का जो ख्वाब होता है वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। जो मोमिन बंदे का ख्वाब है वो वही का 40वां हिस्सा है। अच्छा ख्वाब जो है, बुरा नहीं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को कहा, उन्होंने अपने बेटे को, बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार हो गया, बाप ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया, छुरी गले के ऊपर है। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर वो हर चीज पर कादिर हैं। इस्माइल इस्लाम को शीशे से हटा दिया और नीचे जन्नत का मेंढा लाकर बिछा दिया, उसके गले के ऊपर छुरी चल गई और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ इब्राहीम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, तू पास हो गया है, अब कुर्बानी हो। यहां पर अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, फरमाया कुल इन्नत सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल ऐ कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, सारी जिंदगी, मेरी जिंदगी और मेरा मरना, चार काम लिल्लाह अल्लाह के लिए है, रब्बुल आलमीन जो दोनों जहानों का रब है। हर चीज अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाह खालिक है, बाकी हर चीज मखलूक है, और इबादत खालिक की होती है, मखलूक की इबादत नहीं होती। जब खालिक की इबादत के अंदर मखलूक को शरीक कर दिया जाएगा, इसको शराकतदारी कहते हैं। और इस शराकतदारी को अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, जो शिर्क है, शराकतदारी है, ये बहुत बड़ा जुल्म है उस खालिक के साथ जिसने तुम्हें पैदा किया और पूरी दुनिया और दोनों जहानों का रब है, उसके साथ तुम जुल्म कर रहे हो।
अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं जो ये शराकतदारी जो शिरक करने वाला है अल्लाह की इबादत के अंदर अल्लाह की मखलूक को शरीक करने वाला, ये इसको मुशरक कहते हैं। जो अमल करने वाला है, जो अमल है उसको शिरक कहा जाता है, और उस शिरक को करने वाले को कुरान ने मुशरक करार दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं जो शिरक जो है ना, इस अमल को मुशरक को माफ नहीं करूंगा, इसको गुनाह माफ नहीं करूंगा बिल्कुल। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जो जिस तरह गुनाह होंगे मैं माफ कर दूंगा। वो अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है मेरे भाई। ये शिरक जो है ना, वो ज़बानी इबादत का हो, बदनी इबादत का हो या माली इबादत का हो, अगर शिरक हमारे अकीदे के अंदर आ गया, सारी जिंदगी अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, मैं शिरक करने वाले को माफ नहीं करूं। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया मैं युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। मैं युशरिक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, मैं युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, बस उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया। व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना शिरक करने वाले का जहन्नम है। अल्लाह ताला ने ना कुरान के अंदर नबियों की, देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटा अल्लाह के हुक्म पर दे दिया। कोई सोच सकता है कि वो भी अल्लाह के साथ शिरक करेंगे? नहीं, जो सोचेगा वो परले दर्जे का बेईमान है। अल्लाह ताला ने ना हमें समझाने के लिए मिसाल दी है। जो अपने बेटे को रब के हुक्म पर ज़िबा कर सकता है वो कभी अल्लाह के साथ शिरक करेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, 17 जय्यद अंबिया का अल्लाह ताला कुरान के अंदर नाम लेकर फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। ये मिसाल अल्लाह ने हमें समझाने के लिए इतनी बड़ी मिसाल देकर समझाया है कि 17 अंबिया का नाम लेकर अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू, अगर ये शिरक करते लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, मैं इनके अमाल भी ज़ाया कर देता, मैं इनके अमाल ज़ाया कर देता। लेकिन उन्होंने शिरक नहीं किया, उन्होंने तो अल्लाह की तौहीद की दावत दी है। अल्लाह की तौहीद के लिए अपने बेटों को, अपने घर को, अपने इलाके को छोड़ दिया। ये हमें समझाने के लिए कि लोगों ये बहुत बड़ा गुनाह है। और सारे अंबिया का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिसकी सिफारिश से जन्नत में दाखिला मिलेगी, जिसके हाथ से हौज़ कौसर नसीब होगा, उसकी शिफात के अलावा किसी की शिफात नहीं चलेगी। क़यामत वाले दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस सारे अंबिया की इमामत करवाई मिराज के मौके पर मस्जिद अक्सा के अंदर, उसके बारे में अल्लाह ने मिसाल दी है। फिर इससे बड़ी मिसाल लइन अशरकता लयहबतन्न अमलका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू मेरे साथ शिरक करता, अगर ये हमें समझाने के लिए मिसाल दी गई है, लयहबतन्न अमलका, तेरे अमाल भी ज़ाया हो जाते। और मेरे भाइयों इतनी बड़ा ये गुनाह है शिरक। हमारे अकीदा तौहीद, अगर हमारा अकीदा तौहीद है तो हमारे ज़िंदगी भर की नमाजें, रोज़े, कुर्बानियाँ, हर चीज़ कबूल अल्लाह कर लेगा। अगर हमारे अकीदे के अंदर थोड़ी सी शिरक की आमेज़िश हुई ना, तो हमारी सारी ज़िंदगी की इबादत ज़ाया हो जाएंगी, मेहनत ज़ाया हो जाएगी, नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। दूसरी चीज़, पहला अकीदा तौहीद होना चाहिए, अकीदे के अंदर शिरक नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी अमल किया जाए खालिस अल्लाह के लिए किया जाए, लोगों को दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए इंसान को अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया था कि दीन पर अमल करना तो इखलास के साथ अमल करना है। मुखलिसन लहुद्दीन, इखलास के साथ दीन पर अमल करो।
یہ اللہ کا حکم ہے، دل کے اندر اخلاص پیدا کر لو، نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو ہم عمل کریں گے، جو نیت ہوگی، کل قیامت کے دن اس نیت کے مطابق ہمیں بدلہ ملے گا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے اور بڑے پریشان تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے نا تو زبان اقدس سے یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اماں جی وہاں موجود تھیں، مومنوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، پوچھا اللہ کے نبی خیریت تو ہے؟ آج پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر نکلے گا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اس کے اول سے لے کر آخر تک سارے لوگ اللہ زمین کے اندر دنسا دے گا۔ اماں جی پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بازاری بھی ہوں گے، بازاری کا مطلب کیا ہے؟ جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا لشکر جا کہاں رہا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، ساتھ چل پڑے ہیں، کوئی دوستی کی وجہ سے، کوئی رشتہ داری کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چل پڑا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کہاں بیت اللہ کو گرانے جا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں، اس کو بازاری کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ان کو بھی اللہ زمین کے اندر دنسا دے گا، لیکن قیامت کے دن جس کی جو نیت ہوگی اس کی نیت کے اوپر اللہ کھڑا کرے گا، اس کی نیت کے اوپر کھڑا کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دل کی جو نیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، یہ جو قربانی ہم نے کی ہے، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ یہ جو گوشت ہے اور یہ خون، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو نہ خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہے نا، محبت ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور وہ میرے تک پہنچتی ہے، وہ پہنچتی ہے تقوی۔ یہ دل کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَلَا فِي جَسَدٍ مُضْغَةٍ، دل جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا فسادی ہو گیا، خراب ہو گیا، پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ قَلْبٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے۔ اگر دل انسان کا ٹھیک ہے نا تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر انسان کا دل خراب ہے نا پورا جسم خراب ہے، فسادی ہے۔ کہتے ہیں نا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں کام کروں، میرا دل چاہ رہا تھا یہ میں کام کر لوں۔ دل کی بات کرتے ہو، یہ جو تمہارے دل کے اندر تقوی ہے نا کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، سنو صحیح بخاری کی حدیث، لمبی حدیث میں مختصر بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحابی پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، مجھے آپ وہ حدیث بیان کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کو وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ بات کی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر یہی کہا میں وہ حدیث سنانے لگا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر یہی بات کی، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر چوتھی مرتبہ جب ہوش آیا کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے بھڑکائے گا۔ جہنم کی ہم آگ بھڑکاتے نا، ایندھن لکڑی ڈال کر، پٹرول ڈال کر، گیس کے ساتھ، یہ ایندھن ہے۔ جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کا ایندھن جو ہے نا، لوگ اور پتھر جہنم میں اللہ ڈالے گا اور جہنم کی آگ بھڑکے، وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ لوگ، یہ گناہگار، یہ جہنم کے اندر ڈالے گی، جہنم کی آگ بھڑکے گی، شعلے مارے گی۔ یہ بیل ہوتا ہے نا،
गुनाहगार आदमी को जहन्नम देखेगी ना, ये बैल एक जोर आवर होता है, ताकतवर होता है, नथ उसको डाली होती है, पीछे से दोनों बागें आपने खींची होती हैं, रस्से खींचे होते हैं, और वो आगे जोर लगा रहा होता है और नाकों से आवाज़ निकाल रहा होता है, शुक्र मार रहा होता है बैल, ठीक है ना जी। अगले आगे वाला देखकर दहल जाता है कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, वो साइड पर हो जाए, भाग जाता है। ये जब जहन्नम हाँ देखेगी गुनाहगारों को, ऐसे हाँ वो सूखे मारेगी जिस तरह बैल अपने नाक से जो है ना आवाज निकालता है। तो उस जहन्नम को अल्लाह 3 लोगों से भड़काएगा। पहला आदमी कारी कुरान आलिम दीन, दूसरा मालदार जिसको अल्लाह ने माल दिया, तीसरा मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होगा। ये 3 लोग ऐसे हैं, इनके अंदर रियाकारी आ गई। कारी कुरान ने कहा मुझे लोग कहें मैं बड़ा खतीब हूँ, बड़ा कारी हूँ, बड़ा आलिम हूँ, मेरे नाम के साथ अलकाब लगाया जाए, लोग बड़ी तारीफ करें, बस इतनी दिल के अंदर आ जाए, सारी जिंदगी का माल ज़ाया। मालदार जिसको माल दिया है वो ज़कात भी दे रहा है, उशर भी दे रहा है, सदका भी दे रहा है, गरीबों को, यतीमों को, बेवा को, सबको दे रहा है, लेकिन दिल के अंदर उसके क्या है? लोग कहें कि ये बड़ा खर्च करने वाला अल्लाह का वली है, सखी दाता है बड़ा। तीसरा मुजाहिद, जिहाद किया उसने काफिरों के खिलाफ, दिल के अंदर ये आ गया कि लोग मुझे बड़ा बहादुर कहें कि ऐसा मैं काम कर जो लोग मेरे पीछे तस्करे करें। अल्लाह ताला के सामने तीनों कल क़यामत के दिन पेश होंगे। अलग अलग की बात है, मैं तीनों की इकट्ठी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला तीनों से पूछेगा बताओ मैंने दुनिया के अंदर बड़ी नेमतें तुम्हें दी थी, तुमने मेरी नेमतों का क्या बदला दिया, मेरे लिए क्या करके आए हो, ज़िंदगी कैसे गुजार गए? कारी कुरान कहेगा या अल्लाह तूने कुरान का इल्म दिया था, मैंने तेरे दीन को फैलाया था, तेरे कुरान को पढ़ाया था, लोगों के अकीदे ठीक किए, मैंने बच्चों को, लोगों को हिफ्ज़ करवाया, उनको समझाया कुरान, सारी ज़िंदगी इसी काम के अंदर लग गया, तेरे पास आ गया हूँ या अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा कज़्ज़ब्ता, ये तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये तू लोगों के लिए अंदर शोहरत चाहता था, आज लोग तेरे तज़किरे कर रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्तों इसको पाँव से पकड़ो और मुंह के बल घसीटते जहन्नम में डाल दो। दूसरा मालदार, वो कहेगा या अल्लाह तूने मुझे माल दिया था, मैंने तेरे रास्ते में तेरे दीन को मजबूत करने के मसाजिद बनाई, मदारस बनाई, जहाद को फंड लिया, मैंने गरीबों को दिया, सारा कुछ किया तेरे खुद तुझे खुश करने के लिए। अल्लाह फरमाएगा कज़्ज़ब्ता, तू झूठ बोलता है। वहां कौन कह सकेगा ये अल्लाह मैं तो कुछ नहीं झूठ बोला, अल्लाह के सामने कौन बोल सकेगा? अल्लाह फरमाएगा कज़्ज़ब्ता, अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है। तो अल्लाह फरमाएगा उसके बारे में भी, तू तो चाहता था लोग मुझे बड़ा सखी कहें, अल्लाह बड़ा खर्च करने वाला है नेक कामों के अंदर, लोग तेरे तज़किरे कर, इसके पाँव से पकड़ो जहन्नम में डाल दो। तीसरा मुजाहिद, उसके बारे में भी यही होगा, तू चाहेगा तू शोहरत, लोग आज तेरे तज़किरे कर रहे हैं, उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सिर्फ क्या है दिल के अंदर, सिर्फ ये आ गई कि लोग हमारा तज़किरा करें, लोगों के अंदर हमारी शोहरत हो जाए, जिंदगी भर के अमाल ज़ाय और उनका ठिकाना। और भाइयों दूसरा काम है, जो भी काम करे अखलास के साथ अल्लाह को खुश करने के लिए करे। लोगों को आप खुश नहीं कर सकते, अल्लाह को खुश करना हो तो थोड़ा सा बस आप अल्लाह के सामने रो पड़े, हाथ उठा ले, बस अपने गुनाहों का अल्लाह के सामने इकरार कर ले, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह बड़े जल्दी राज़ी हो जाता है, बंदे नहीं राज़ी होते। तीसरी चीज़, जो भी अमल करें वो सुन्नत के मुताबिक हो, वो सुन्नत के मुताबिक हो। अगर सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं, सारी ज़िंदगी अमल करते रहो, कोई कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज़ का रसूल हुक्म दे उस पर अमल कर लो, जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी उम्मत, अल्लाह के नबी फरमा रहे मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन अबा, लेकिन जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा वो नहीं जाएगा। कालू मैं अबा या रसूल अल्लाह, सहाबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन बदबख्त शख्स होगा जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आतानी दखल जन्नत, जो मेरी इताअत करेगा ना
मेरी फर्माबरदारी करेगा, मेरी हदीस, मेरे कौल, मेरे इरशाद, उसके मुताबिक अपना जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा, वो तो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आशानी फ़कत अबा, जिसने मेरी हदीस, मेरे कौल, मेरे इरशाद, मेरी सुन्नत की खिलाफ वर्जी की, नाफरमानी की, अपनी मन मर्जी की, वो उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। फ़कत अबा, बस उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। वो कहता है मुझे जन्नत में जाने की जरूरत नहीं। क्यों भाई? जब नबी की इताअत नहीं करेगा, तेरी नमाज नबी के हुक्म के मुताबिक नहीं है, तेरा कुर्बानी नबी के हुक्म के मुताबिक नहीं है। एक सहाबी रसूल बताते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो कुछ लोगों ने ना नमाज ईद पढ़ने से पहले ही जानवर ज़िबा कर दिए। अब ये नबी की सुन्नत नहीं है। कुर्बानी तो उन्होंने उसी दिन कर ली, लेकिन नमाज ईद पढ़ने से पहले कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी कोई कुर्बानी नहीं है और तुम उसकी जगह पर दूसरा जानवर ज़िबा करो। और साहबी कहते हैं हमने नमाज पढ़ी, नमाज ईद पढ़ी, फिर हम वापस अपने घर में आए और फिर अल्लाह के नबी ने कुर्बानी की। ये सुन्नत तरीका है। अब सुन्नत तरीके से सहाबा अगर उन्होंने पहले कर दी सी कुर्बानी, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आमिला आमिलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिस किसी ने कोई भी अमल किया, अगर वो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक नहीं है, फहुवा रद्दुन, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसको कबूल ही नहीं करेगा, अल्लाह उसको कबूल ही नहीं करेगा। 3 सहाबा के ईमान के बारे में कोई शक कर सकता है? जो सहाबा के ईमान के बारे में शक करेगा ना, वो बेईमान है, बेईमान है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तहरा मुतहरा रज़ी अल्लाह अन्हा घर में मौजूद थी। तीनों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, रात की इबादत, अल्लाह के नबी क्या करते हैं, दिन को क्या करते हैं, नफली रोज़े कितने रखते हैं, इशराक कितनी पढ़ते हैं, तहज्जुद कितनी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत, सारी इबादत के बारे में पूछा। अम्मा जी ने बता दिया। एक साहबी कहने लगा आज के बाद ना मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अल्लाह के दीन का काम करूँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा, अल्लाह के दीन की। दूसरा कहने लगा मैं रोज़ाना रोज़े रखूँगा, किसी दिन छोड़ूंगा नहीं। तीसरा कहने लगा मैं रात को रोज़ाना क़याम करूँगा, सोऊंगा नहीं, सारी रात ही क़याम करता रहूँ, तहज्जुद पढ़ता रहूँगा। तीनों अच्छी बात है, शादी नहीं करूँगा, दीन का काम करूँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा, 3 दिन को रोज़े रखूँगा, ठीक, रात को तहज्जुद पढ़ूँगा। वो चले गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ लाए। अम्मा जी ने बता दिया। आपके 3 साथी आए थे, उन्होंने ये सवाल किया, मैंने जवाब दिया, वो ये कह कर गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों वापस बुला लिया, अपने पास बुलाया, पैगाम भेजा मेरे पास आओ। तीनों सहाबा आ गए फौरन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुमने ये बात की है? हाँ, अल्लाह के नबी ने की, क्योंकि सहाबा तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम मुझसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाले आ गए, अल्लाह से डरने वाले आ गए, अल्लाह की इबादत करने वाले आ गए? मैंने शादियां भी की हुई है, दीन का काम भी करता हूं, मैं रात का क़याम भी करता हूं, पाँव के अंदर वरम आ जाते हैं, रात को आराम भी करता हूं, मैं दिन को रोजे रखता हूं। हर सोमवार जुमेरात को अल्लाह के नबी रोजे रखते थे, यौम अरफा का रोजा अल्लाह के नबी ने रखा, अय्यामुल 20 के रोजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के 13, 14, 15 चांद की ये नफली रोजे रखते थे। तो मैं रोजे रखता भी हूं, छोड़ता भी हूं। आगे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मन रागिबा अन सुन्नति फलैसा मिन्ना, मन रागिबा जिसने एराज किया, मुखालफत की, अन सुन्नति मेरी सुन्नत की, फलैसा मिन्ना बस वो हम में से नहीं है, वो हमारे दीन में से नहीं है, उसने अपना दीन बना लिया है। और क्यों सुन्नत की खिलाफ वर्जी किया साहबा ने? अल्लाह के नबी ने उनकी उसी वक्त इस्लाह कर दी कि मेरे सुन्नत के मुताबिक तुम्हारा अमल होगा तो तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक है, अगर तुम्हारा अपनी मर्जी करोगे तो फिर तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक नहीं है। फलैसा मिन्ना मन रागिबा अन सुन्नति फलैसा मिन्ना, जो मेरी सुन्नत की खिलाफ वर्जी करेगा, अपनी मन मर्जी करेगा, कल क़यामत का दिन होगा। जो अपनी मन मर्जी करता, सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते ना, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर मौजूद होंगे, दाएं अबू बकर होंगे, बाएं उमर होंगे रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और प्याले ऐसे पड़े होंगे जैसे आसमान के ऊपर सितारे होते हैं। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
हौज़ कौसर से पानी भर भर के उम्मत मोहम्मद को पिला रहे होंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। और जिसको एक मरतबा हौज़ कौसर का जाम पानी नसीब हो गया ना, आखिरत की ज़िंदगी के अंदर कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, अबू बकर उमर पानी भर भर के पिला रहे हैं। अल्लाह के नबी देख रहे हैं ये मेरे उम्मती आ रहे, उनके हाथ भी चमक रहे थे, चेहरा भी, पाँव भी। जो वज़ू वाले औज़ा हैं वो क़यामत वाले दिन चमकेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औज़ा, चमकते हुए औज़ा से पहचानेंगे ये मेरे उम्मती आ रहे हैं। जब करीब आए ना, फौरन अल्लाह के फरिश्ते उनके सामने लाइन बनाकर खड़े हो गए, बैरियर लगा लिया, तुम आगे नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा फरिश्तों ने रोक लिया मेरे उम्मतियों को, कहा अल्लाह के फरिश्तों ये मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। अल्लाह के फरिश्ते क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक ये आपके उम्मती हैं, लेकिन क्या इनकी गलती क्या है? हमें हुक्म है कि ये आगे नहीं जा सकते, हौज़े कौसर का पानी नसीब नहीं होगा, जन्नत में कैसे जाएंगे? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के नबी, आपको दुनिया से आने के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था और इन्होंने अपना दीन मर्जी का बना लिया था, आपके दीन को तब्दील कर दिया था, आपकी सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं किया था। इस वजह से इनको हम आगे नहीं आने देंगे, हमें हुक्म है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, फरमाया सोहकन सोहकन, इनको दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। मन गय्यरा दीन मिन बादी, जिन्होंने मेरे दीन को मेरे बाद बदल दिया, जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया है, अपने तरीके अपना लिए हैं, सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं किया, कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर से पानी भी नसीब नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीर। जो भी अमल करें सुन्नत के मुताबिक, अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है ना, तो फिर सारी जिंदगी के अमाल ज़ाय हो जाएंगे। चौथी चीज़ और आखिरी बात, वक़्त क्या हो गया जी? आखिरी बात, हम जो रिस्क खाते हैं ना, ये रिस्क हलाल का होना चाहिए, रिस्क हलाल का होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, जो ज़मीन से मैं तुम्हें रिस्क देता हूँ उस हलाल और तैयब खाओ, हलाल और तैयब, एक हलाल और एक पाक, ये तुमने रिस्क खाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, दो हदीसें हैं, एक के अंदर बैतुल्लाह का जिक्र आता है, एक का बैतुल्लाह के अंदर जिक्र नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स बड़ा दूर से सफ़र करके आता है, मैले कुचैले कपड़े हैं, चल चल के मिट्टी पड़ पड़ के कपड़े मैले हो गए, सर के अंदर मैल है, दाढ़ी के अंदर मिट्टी है, थकावट है, बड़ा दूर का सफ़र करके आया है और बैतुल्लाह के सामने खड़ा है। या अल्लाह के सामने उसने हाथ उठाए, अल्लाह के सामने हाथ उठाए और कहता है या रब्बी, अल्लाह ऐ मेरे रब, मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है आगे जवाब क्या आएगा कि तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा लिबास हराम का, तेरी ग़िज़ा हराम की, मैं तेरी दुआ क्यों कबूल करूं? और जिसका कपड़े हराम के, जिसकी खुराक हराम की, जिसका पानी पीना हराम का, जिसकी कोई भी ग़िज़ा हो वो हराम की होगी माल की, अल्लाह दुआ भी कबूल नहीं करेगा। याद रखो, शैतान की दुआ अल्लाह ने कबूल की थी, लेकिन हराम माल खाने वाले की अल्लाह दुआ भी कबूल नहीं करेगा। शैतान ने यह दुआ की थी ना, जब वो नाफरमान हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, काफिरों में से हो गया था, तो अल्लाह ने उसको जहन्नमी करार दे दिया। उसने कहा या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे, इतनी फुर्सत दे, मोहलत दे कि मैं क़यामत तक तेरे बंदे जो है ना उनको बरगा कर अपने जैसा करके जहन्नम में लेकर जाऊं। हाँ, जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे ना उनके ऊपर मेरा वार नहीं चलेगा। अल्लाह ने भी यही फरमाया, जो मेरे मुखलिस होंगे तेरी बात उनके ऊपर नहीं चलेगी, और जो तेरे साथ होंगे वो तेरे साथ जहन्नम के अंदर जाएंगे। तेरे साथ जो चलेंगे तेरे साथ जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने उसकी बात मान ली थी,
اس کو دعا کہہ لے، اس کو ڈیمانڈ کہہ لے، اس کو رخصت کہہ لے، جو مرضی کہہ لے۔ اللہ نے شیطان کی بات مان لی تھی، لیکن جو حرام کھانے والا ہے اس کی اللہ دعا نہیں قبول کرتا، تو نماز کیسے قبول کرے گا؟ قربانی کیسے قبول کرے گا؟ روزہ کیسے قبول کرے گا؟ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ چار چیزیں، عقیدہ توحید اور نیت خالص اللہ کے لیے، اخلاص دل کے اندر پیدا کر لو۔ تیسرا سنت کے مطابق عمل کرو۔ چوتھا رزق حلال ہو، اللہ ضرور عمل قبول کرے گا۔ ان میں سے ایک چیز بھی رہ گئی نا، باقی تین چیزوں کے اوپر عمل ہوا نا، پھر بھی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائے گے۔ چاروں کی چیزوں کے خیال رکھو، انشاءاللہ اللہ ہمارا ہر عمل قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Dunia. Thank you.